नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड by two carbon atoms. Now these carbon atoms can be alkyl groups of same nature or both the carbon atoms are different alkyl groups. It may be one alkyl group and one aryl group, and it may be both aryl group. So all these are the different types of ethers. Now if you classify the ether, then the ethers can be classified as classification of ethers. Ethers can be classified as aliphatic ethers and aromatic ethers. बच्चों, aliphatic, as the name indicates, aliphat means the organic compound that were earlier derived from fatty substances. जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनको हम एलिफैटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो एलिफैटिक ईथर्स में जो हमारा कार्बन एटम होगा ये एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा, या जो कार्बन है ये एल्किल ग्रुप है, और ये एल्किल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर दोनों सेम है तो उसको हम एलिफैटिक ईथर्स में फिर दो तरह के होंगे। एक होगा सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल ईथर, और इसको हम मिक्स्ड ईथर भी बोल सकते हैं। नाउ इन सिमेट्रिकल ईथर बोथ द एल्काइल ग्रुप विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3, C2H5O C2H5। दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, तो ऐसे ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। सिमिलरली इन अनसिमेट्रिकल ईथर बोथ द एल्काइल ग्रुप विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन और C2H5O C3H7. Both the alkyl groups are different. Similarly, in aromatic ethers, here in this case, the oxygen will be flanked on either side by one aromatic group or both the aromatic groups. So depending upon the situation, it can also be classified into two types. One is aralkyl ether, AR alkyl ether. As the name indicates, AR means aromatic and aliphatic ether. दोनों ग्रुप होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3O C6H5 एनिसोल, ये कॉमन नेम है। नेमिंग अभी हम बाद में देखेंगे, सीखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, एरल्किल ईथर हुआ, क्योंकि एक एरोमेटिक ग्रुप है C6H5 फिनोलिक ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट, ये डाइफेनिल ईथर भी हो सकता है। डाई एराइल ईथर एज C6H5O C6H5 diphenyl ether, diphenyl ईथर। तो इस तरह से
क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर है बच्चों. नाउ वी विल सी द आइसोमेरिज्म इन ईथर. आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट आइसोमेरिज्म इज? Isomerism in ether. As you know, isomerism is the phenomenon where the organic compounds having same molecular formula but exist in different structural formula form, and these form have different properties. So if the compounds having same molecular formula but different structural formulae and different properties, then such compounds are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. So what type of isomerism is observed in case of ether? So they exhibit functional group isomerism. Functional group isomerism. What functional group isomerism is? It is the structural isomerism in which compounds have same molecular formula but different functional groups, and of course if functional group is different then their properties will be different. For example, if you take for the molecular formula C2H6O, so now there will be two compounds. One is C2H5OH, another can be CH3OCH3. Now children, if you see these two compounds, so they have different functional group, their property is totally different, but their molecular formula is same. Here it is alcohol and this one is ether. So in this way, this is most common isomerism which is observed in case of ether. Now we will see how the ethers can be named. Naming of ethers. Now naming. How the ethers can be named. जैसा पहले भी हमने देखा है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स में देयर आर टू सिस्टम ऑफ नेमिंग. एक है कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम बच्चों आपको करना क्या है कि ईथर इज यूज्ड एज सफिक्स टू द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम डाई एल्काइल ईथर बोलेंगे, और दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो एल्किल ग्रुप का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया जाएगा और फिर ईथर विल बी यूज्ड एज सफिक्स. फॉर एग्जांपल, इफ सपोज आवर कंपाउंड इज CH3OCH3. क्लियर? अब हमें इसको नेम करना है. हाउ इट कैन बी नेम? तो अब इसको मेथिल ईथर तो बोलेंगे नहीं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज होगा. सो दिस कंपाउंड कैन बी नेम्ड एज डाई मिथाइल और ईथर एज ए सफिक्स. तो ये अलग पार्ट हो गया, ईथर अलग पार्ट है और डाईमेथिल एक पार्ट है. अब अगर मान लीजिए हम अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, जैसे CH3OC2H5 अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर चूंकि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो इसलिए इनके नाम हम किस में लेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो एक ग्रुप मेथिल है, दूसरा एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, फिर मिथाइल और फिर ईथर. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे पार्ट अलग अलग होंगे. इन आईपीएसी सिस्टम ethers are called as alkoxyalkane. alkoxyalkane ये वन वर्ड नेम होगा बच्चों, alkoxyalkane. And alkoxy is determined by taking lower alkyl group with ethereal oxygen.
So ethers are called as alkoxyalkane with lower R group is taken with इथेरियल ऑक्सीजन। और अगर दोनों सेम है तो किसी को भी हम इथेरियल ऑक्सीजन के साथ ले सकते हैं। सो लेट अस सी चिल्ड्रन हाउ वी कैन नेम द ईथर इन आईपीएसी सिस्टम। दे आर कॉल्ड एज एल्कोक्सी एल्केन विथ लोअर एल्किल ग्रुप इज टेकन विद इथेरियल ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आवर कंपाउंड इज CH3O CH3. Okay. This is symmetrical ether. Now, since both the alkyl group are same, so you can take any alkyl group with ethereal oxygen to determine alkoxy, that is prefix. And then alkane, parent name, is derived from another part, that is the larger alkyl group. So, since in this case both are same, so this will be methoxy, that is methoxy. मेथ मेथाइल से बना, मेथ ऑक्सीजन के साथ जोड़ो मेथॉक्सी, और एक कार्बन का एल्केन, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होगा, एक कार्बन से मेथ बनता है तो ये हो जाएगा क्या, मीथेन। अब अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर लें, इफ वी टेक अनसिमेट्रिकल ईथर लाइक CH3O C2H5, अब क्या होगा, अब किस एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेके एल्कोक्सी हम बनाएंगे, तो इसमें रूल ये है कि वी विल टेक लोअर एल्किल ग्रुप विद इथेरियल ऑक्सीजन। सो ओके, सो दिस मेथड इज टेकन विद इथेरियल ऑक्सीजन। सो द नेम ऑफ दिस ईथर विल बी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो गया, और उसके बाद पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से एथ बना, तो ये हो जाएगा इथेन। 1 वर्ड नेम है, यहां पर कोई गैप कोई हाइफेन नहीं होगा। लेट अस सी द नेमिंग ऑफ सम मोर कंपाउंड्स। नाउ नेम दिस कंपाउंड इन IPAC system. Do by yourself. Do the naming of these compounds in IPAC system. Okay. So let's see. See here. These two are unsymmetrical ethers. So in unsymmetrical ether, the lower alkyl group is taken with ethereal oxygen. So this is lower alkyl group. It is taken with ethereal oxygen to determine alkoxy. So this is methoxy, methoxy, and since the parent hydrocarbon part, parent alkyl group part, this contains 3 carbon. So alkane derived from 3 carbon. क्या हो जाएगा? Propane, because all are held by single bond. So the name of this compound will be methoxypropane. But note that the compounds having 3 carbon atoms, there can be isomerism. So it would be appropriate to write the position of this substituent, this methoxy, this prefix. So do the numbering of the carbon atom of the parent chain. So this is done from that end which gives lowest figure to the carbon bearing this alkoxy group. So the numbering is done from this end. This 1, 2, 3. हम इस एंड से नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 नंबर मिलेगा और उस 3 पर ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ओके, तो नंबरिंग उस साइड से करिए जिधर से जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो नजदीक पड़े या वो उस कार्बन पर जिस पर अटैच्ड है उसको लोएस्ट फिगर मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1, और जब भी नंबर यूज करते हैं डैश, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथऑक्सी। ठीक है, 1 मेथॉक्सी, और उसके बाद ये 3 कार्बन से क्या बना, प्रोप हुआ, और दे आर हेल्ड सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
जो प्राइमरी सफिक्स यूज हुआ वो एन हुआ, तो इसका नाम हो गया 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली इसका नेम करेंगे। ओके, ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है। यहाँ पर लोअर एल्किल ग्रुप इथेरियल ऑक्सीजन के साथ लिया और ये इस पर अटैच्ड है। फिर हम ये देख रहे हैं ये ब्रांच्ड है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसकी फिर उसमें लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है वो किस कार्बन पर अटैच्ड है। उसके बाद नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिससे उस कार्बन एटम को जिस पर हमें हमारा ये एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उसको लोएस्ट फिगर मिले। तो 1 2 3 4, तो एक और इधर से करोगे तो 1 2 3, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड which gives lowest figure to the substituted carbon or the carbon bearing substituent। तो substituent यहां पर क्या है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मीन्स मेथऑक्सी। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, 2-मिथॉक्सी, और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2-मिथॉक्सी butane। Okay, now we will take some more compounds. If you want to take a screenshot then you can have. Okay, do the naming of this compound. This one. So see here in this case this is cyclohexane and the substitution is taking place at this place, this carbon and this carbon is substituted। तो यहां पर एक ग्रुप हमारा हेलोजन है और दूसरा मिथॉक्सी है। ठीक है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। हम उस साइड से करेंगे जिससे इनके पोजीशन का सम लोएस्ट मिले। फिर जब हम ग्रुप्स को अरेंज करेंगे तब हम किस ऑर्डर में करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये कंपाउंड हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो हुआ, 1 पर ये कौन सा ग्रुप है, मेथॉक्सी, 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी, और ये जो रिंग है ये किसकी है, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से do the naming of this compound। यहां पर आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर CH3 अटैच्ड है और बेंजीन रिंग पर OC2H5 अटैच्ड है। तो अगर हम इसको 1 दें तो 2 हो जाएगा यहां पर। तो ये कंपाउंड 1 पर इथॉक्सी और 2 पर मिथाइल। तो अब इथॉक्सी ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल बेंजीन। हम मिथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन भी बोलते हैं। तो अगर टॉल्यूइन बेस्ड नाम लिखेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी टॉल्यूइन, 2 इथॉक्सी टॉल्यूइन। क्योंकि बेस नेम में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है और वो उस कंपाउंड का बेस नेम डिटरमाइन कर रहा है तो नंबरिंग वहीं से करी जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम ईथर्स की नेमिंग करते हैं बच्चों। नाउ वी विल सी हाउ द ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। So first method is
the dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. So what happens in this method? Symmetrical ether is prepared by this method. Symmetrical ether is prepared by this method. Here in this method, the alcohol is heated with conc H2SO4 at 413 Kelvin temperature. Now, on heating the alcohol with conc H2SO4 at 413 Kelvin temperature, then it loses one water molecule, and this concentrated H2SO4 also acts as dehydrating agent. So we get RO, R as a product, and water comes out, and the sulfuric acid absorbs the water. For example, if we take the most common alcohol, that is C2H5OH, to write this reaction, okay, we can do in the same way. Conditions are same. Heating with conc H2SO4 at 413 Kelvin temperature, there is loss of water like this, and it gives C2H5O, C2H5 along with water. So here is dehydration of alcohol, and we get symmetrical ether as a product. This ether is ethoxyethane, that is symmetrical ether is obtained. अब इस मेथड में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है? हमें इस मेथड के द्वारा अनसिमेट्रिकल ईथर क्यों नहीं बना सकते, और व्हाट हैपेंस इफ वी टेक सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ड्यूरिंग दिस मेथड. तो हम ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये जरूरी है कि इस मेथड में हम ये बताएं कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं, सपोज वी टेक प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज ethanol. This is primary alcohol, and it is heated with conc H2SO4. If we see the what is effect of temperature, so it is heated with conc 413 Kelvin temperature. So under this condition, we get ether as a product. Clear? But if the same ethanol is heated with conc H2SO4 above 443 Kelvin temperature, then at 443 Kelvin temperature, then we don't get any ether as a product, but now we get ethene as a product along with the loss of water molecule. तो सबसे पहले बात ये हमें ध्यान में रखना है कि अल्कोहल शुड बी प्राइमरी इन ऑर्डर टू गेट द ईथर. अल्कोहल क्या होना चाहिए? प्राइमरी. ये पहली चीज है. अल्कोहल शुड बी प्राइमरी वन. तो अब ये बात है कि अगर प्राइमरी नहीं है तो क्या होगा? इफ इट इज सेकेंडरी, तो बच्चों सेकेंडरी के केस में डिहाइड्रेशन होगा, तो ईथर और एल्कीन दोनों बनने की चांसेस रहेंगी. लेकिन अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, अंडर द सिमिलर कंडीशन वी गेट प्राइमरली एल्कीन एज ए प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ गेटिंग ईथर. तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल. तो हमें ये इस मेथड के लिए ऐसे ईथर को हम बना सकते हैं जिसमें
हमारा जो एल्किल ग्रुप हो वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप हो, ऐसे ईथर को हम इससे बना सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के केस में एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट हमें बनेगा। नाउ अगर टेम्परेचर की बात करें बच्चों, तो टेम्परेचर में भी हम देख रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल भी लें तो अल्कोहल शुड बी एक्सेस, ठीक है, अल्कोहल एक्सेस में होना है। अगर एसिड एक्सेस में हुआ और टेम्परेचर एबव 443 हुआ तो उस समय हमें एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चों हमें बेसिकली ये देखना है कि हाउ द प्राइमरी अल्कोहल गिव्स द ईथर एज ए प्रोडक्ट। तो हम ये रिएक्शन देखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ वी गेट ईथर व्हेन वी टेक प्राइमरी अल्कोहल। तो हम एग्जाम्पल के लिए एथेनॉल को ही लेंगे in order to learn the mechanism. So let us see how we get ether from ethyl alcohol. Mechanism of this reaction. Okay, so there are 3 steps. Step 1, step 1 is protonation of alcohol. Protonation of alcohol. Protonation of alcohol means attack of proton, that is H plus, on substrate molecule, that is alcohol. This reaction is called protonation reaction. So let us see how protonation occurs. Here we have C2H5OH containing lone pair on oxygen and H plus, that is proton. So where from this H plus comes? This H plus comes from sulfuric acid. So this sulfuric acid H2SO4, this gives H plus and HSO4 minus. So this H plus is obtained from sulfuric acid. Now H plus require one pair of electron. Now this H plus attacks for this lone pair or this like this, and then we get C2H5O. Now one pair is given to this H. Now it becomes like this, bearing positive charge, as this oxygen has given its lone pair to hydrogen, or this H plus attacks on this oxygen for this pair of electron, and it gets held up with the oxygen. So now oxygen bearing positive charge, this is oxonium ion. अब बच्चों इसके बाद जो स्टेप सेकंड होगा उसके लिए 2 तरह की चांसेस पॉसिबल हैं। वो चांस ये है कि जो स्टेप सेकंड है कि ये हो सकता है कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है, इट लूजेस वन वाटर एंड फॉर्म्स इथाइल कार्बोकेटायन, और फिर इथाइल कार्बोकेटायन प्रोटॉन लूज करके एल्कीन बना दे। अगर इस तरह का हो रहा है तो ये उस समय ज्यादा होगा जब हमारा एल्कोहल टर्शियरी होगा, क्योंकि टर्शियरी के केस में जो इथाइल कार्बोकेटायन यहां बन रहा है, तो टर्शियरी के केस में टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, तो इसका क्लीवेज ज्यादा फेवरेबल होगा उस समय। तो सेकंड स्टेप में या तो ये बांड टूट जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये बांड टूट गया, बिकॉज दिस बांड हैज बिकम वेरी वीक बांड नाउ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन, बिकॉज दिस ऑक्सीजन विल पुल दिस शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो अगर ये बांड नाउ इट हैज बिकम हाईली पोलर, तो अगर ये टूटता है तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो एक तो ये चांस है, तो ध्यान रहे वो तब होगा जब हमारा एल्कोहल टर्शियरी हो, तो वहां पर ये बांड क्लीव हो जाएगा, वो सेकंड स्टेप में। लेकिन यहां चूंकि हमारा एल्कोहल प्राइमरी है, तो प्राइमरी एल्कोहल में क्या होगा कि ये बांड टूटता नहीं है, बट
होता क्या है कि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। बिफोर द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, तो इस मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये है क्या, अटैक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल किस तरह से काम कर रहा है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन कार्बन एटम ऑफ ऑक्सोनियम आयन। कार्बन एटम पर क्यों, क्योंकि यहां जो कार्बन एटम इससे अटैच्ड है, अब वो उसका शेड पेयर इधर जा रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल जो एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम। सो लेट अस सी कि ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। तो बच्चों हमारे पास यहां पर है C2H5OH, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और हमारा दूसरा जो ऑक्सोनियम आयन है, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं समझने के लिए, ताकि ये आपको ज्यादा क्लियर हो। तो ये बॉन्ड क्या हुआ, अब हाईली पोलर है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल मेक द अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अगर ये इस पर अटैक कर रहा है तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और ये सब एक ही स्टेप में हो रहा है, और इस मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, दैट इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। As the reaction takes place in single step, passes through transition state, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों कहाँ अटैक करेगा, इस पूरे ये अब सबस्ट्रेट का काम कर रहा है ऑक्सोनियम आयन, तो इसके इस कार्बन पर जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है बच्चों, यहां पर अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसकी नेबरहुड पोजीशन से शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। ओके, तो जब ये अटैक होगा तो हमें क्या बन गया, देखिए अब आप लिखिए C2H5, ठीक है, O और H, ठीक है, O के थ्रू इस कार्बन पर अटैक किया ये, तो इस कार्बन को लिख दें आप, फिर क्या लिख देंगे, CH3, ओके। अब एक पेयर इसने इसको दिया, और अब ये चूंकि वापस आ गया तो यहां पर क्या बन गया, ठीक है, वाटर बन गया इस तरह से। और चूंकि इसने अपना पेयर इसको दे दिया तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक पेयर आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर बन गया, क्या है ये, प्रोटोनेटेड ईथर। तो ये बच्चों प्रोटोनेटेड ईथर उस समय बनेगा, कब बनेगा, जब एल्कोहल हमारा प्राइमरी हो, एक्सेस में हो। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर हमारा एल्कोहल टर्शियरी होगा तो प्रोटोनेशन तो होगा, प्रोटॉन कौन सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, लेकिन प्रोटोनेशन के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप में है उसमें ये ऑक्सोनियम आयन यहां से क्लीव करेगा हेटेरोलाइटिकली, कार्बोकेटाइन बनाएगा, और फिर कार्बोकेटाइन H+ लूज करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर हमारा एल्कोहल प्राइमरी है तो उस समय ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। नाउ इट विल अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ ऑक्सोनियम आयन, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 3। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या होगा, अब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, लॉस ऑफ H+ टू फॉर्म ईथर। तो अब यहां पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, C2H5OH लिखा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज भी, और ये रहा हमारा C2H5, ओके। नाउ अब ये यहां शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को, और दिस H विल कम आउट एज H+, और हमारा
प्रोडक्ट मिल गया, H प्लस अगेन जनरेट हो गया। फिर H प्लस का यूज कहाँ होगा? फर्स्ट स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि इन दिस मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ nucleophile, that is alcohol, another molecule of alcohol on oxonium ion, and the third step is the loss of H plus, loss of proton to form the ether as a product. अब इस रिएक्शन में फिर हम आपको बता दें, ईथर बनाने के लिए ध्यान रहे कि our alcohol should be primary, it should be in excess, and temperature should be maintained 413 Kelvin. If the alcohol is primary but the temperature is above 443, then we get alkene as a product. If our alcohol is secondary and tertiary and temperature is 443, then we get alkene as a product. Even in secondary and tertiary alcohol, if we treat it with conc H2SO4 at this very temperature, then there will be chances for the formation of alkene instead of getting the ether. Okay.